उनके दिमाग में कि आरक्षण से आए हैं। हाँ। और ये काबिल नहीं है, काबिल नहीं है, इसीलिए ये उनके दिमाग में है कि दे आर नॉट काबिल, लायक नहीं है। आरक्षण की वजह से इनकी अपॉइंटमेंट हुई। एक जनरल कम्युनिटी का ऑफिसर है, थोड़ा मेरे से सीनियर था, उसने मेरी ऐसी फाइल रखी थी, उसने फेंक दिया फाइल। बोला कहाँ से शेड्यूल कास्ट लोग यहाँ चले आते ONGC जैसे ऑर्गेनाइजेशन में। आरक्षण की जो बात है ना, एक्चुअली क्या है कि हमारा समाज जो है, even they are not ready to give it, that's the problem. In one of the interview board, the chairman of the board remarked, and it was workers category. He said, यार ये छोड़ो यार, रिजर्वेशन वगैरह छोड़ो, हमको काम के आदमी चाहिए. This is the remark he made, and I started fighting almost with him that what do you mean by that? हमारे लोगों के साथ में वही हुआ जो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में हुआ था। वह फ़र्क कितना था, डॉक्टर अम्बेडकर को क्लास से बाहर रखा, वो विंडो से देखते थे, हम लोग जो अंदर बैठते थे, लेकिन वो टाट पट्टी पे बैठते थे और हम अपने घरों से बोरी लेके आते थे। आप इनको एम्पावर कीजिए, इनके दुखड़े दूर कीजिए, इनको एजुकेशन दीजिए, इनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जब ये स्ट्रांग होगा तो इंडिया भी स्ट्रांग होगा और ये विश्वगुरु जरूर बनेगा, लेकिन इनको छोड़ के नहीं बनेगा। Hello and welcome to News Laundry interview. Recently, you might have heard about IIM Bangalore's professor writing a complaint letter to President of India Draupadi Murmu. In the letter, he alleged that 8 of his colleagues, including IIM Bangalore's director T. Krishnan, was involved in subjecting him to caste-based discrimination. This is something which is really concerning, especially because it comes from India's premier business institute. But what is more concerning is that these are the kind of news which usually die down amongst all other newses. So today, we bring you a conversation about how casteism operates in educational institutes and workspaces. But today we have a bit of an unusual setup, a different setup. And to talk about this, we have not one but 3 special guests with us. He's Professor Onkar, 85-year-old, and he has been formerly a general manager at Hindustan Copper and group manager at ONGC, and he was also a faculty member at BITS Pilani and IMD Gurgaon. Then we have Nagsin Sonare, a former deputy GM at ONGC, and Hriday Narayan sir. He was a retired senior officer at Air India. Madam, issue ऐसा है कि he joined in the open category in IIM Bangalore. He didn't join in the reserve category. So he came in the open category. But that time the directors and senior professors, they didn't know that he's from this community. After joining and he started performing better, they found out that he belongs to scheduled caste. And since that day they started, humiliating him, discriminating him, and it is going on for last about 5 years. So in what form, like in what way there was discrimination? They are now trying to suppress me, so that I should leave this institute. They have made the atmosphere in such a way, and they created the atmosphere in such a way that I have to leave this institute or I have to commit suicide. That is what also he said. Okay, why? That's a very big statement. Like Revut, he told me, it will become another Rohit Vemula, because alone I am fighting. There is nobody in the institute to support me. Professor Gopal Das is a very, like the rarest of rare incident where we see a professor, a senior professor or assistant professor coming out and talking about it openly. So we would like to know from like each one of you, how, like casteism, in what form or shape used to operate at your workspaces. ये बिगिनिंग की बात है। इवन एयर इंडिया में एयर होस्टेस के लिए रिजर्वेशन नहीं था। अच्छा। जब एसोसिएशन ने कोर्ट में फाइल किया कि आप एयर होस्टेस में रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट की तरफ से जवाब दिया गया कि बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड जॉब है एंड इट विल इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। ओके, ठीक है। जब हमारे लॉयर ने जाके पूछा कि भाई क्या उन्होंने जवाब दिया, दिखाया गया, तो आप अपना जवाब फाइल करिए। तो हमने ये बोला कि आप अपने जॉब प्रोफाइल मांगिए उनका, एयर होस्टेस का जॉब प्रोफाइल का है, उससे साफ साबित हो जाएगा कि कैसे इनकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। जब जॉब प्रोफाइल मांगा गया तो जो बताया उन्होंने, सीनियर बॉसेस का जो एटीट्यूड था, तो वो किस तरीके का होता था जब हायरिंग प्रोसेस चल रहा होता था, जब कोई रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट आता था, तो उनका क्या रिएक्शन होता था? In one of the interview board, the chairman of the board remarked, and it was workers category. He said, यार ये छोड़ो यार, रिजर्वेशन वगैरह छोड़ो, हमको काम के आदमी चाहिए. This is the remark he made, and I started fighting almost with him that what do you mean by that? काम के आदमी क्या, हमारे लोग काम के आदमी नहीं है? सारी बिल्डिंग, सारी सड़कें हमारे लोगों ने बनाई हैं। काम के आदमी तुम कहाँ से लाओगे तुम?
तो हम तो यही हैं, मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, मजदूर की पोस्ट है। मैंने कहा हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब थे, पंडित जी पार्शनाथ चतुर्वेदी, ही वॉज वेरी जेंटलमैन एंड नाइस फेलो। तो उनके जो बड़े भाई थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के डिपार्टमेंटल हेड थे, ठीक है। तो वो हर सैटरडे को कुछ पेशेंट लेके बनारस आते थे, तो वो हमें भी अपने साथ लेके आए। उनकी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी। तो आपने सुना होगा बनारस में लोग मरने के लिए जाते हैं, वहाँ मरते हैं तो लोग मोक्ष में जाते हैं, तो वहाँ मुमुक्षु भवन है। तो डॉक्टर साहब जो हमें साथ लेके गए पंडित जी, उनके माँ बाप वहाँ मुमुक्षु भवन में रहते थे, ठीक है। तो वो फार्म लेके हमारा BHU में एडमिशन कराए। एडमिशन कराने के बाद 80 घाट है बनारस में, सुना होगा आपने। 80 घाट पे किराए पे कमरा दिलवाया उन्होंने 50 रुपये महीने पे हमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर यार तुम्हारी जाति से प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मुमुक्षु भवन में तुम्हारा भी इंतजाम हो जाता, हमारी बेटी तो फ्री में रहेगी अपने दादा दादी के साथ पढ़ने के लिए, तुम्हें किराए पर लेना पड़ेगा भाई। हम किराया पे पैसे दे के घर चले गए। जब हम 1 महीने के बाद वहाँ रहने के 15-20 दिन के बाद रहने के लिए जब आए तो मकान मालिक आया, बैठ के बात करने लगा, पूछने लगा कहाँ के हो, कौन हो। हमने अपनी कास्ट बता दी। कहते भाई पंडित जी लेके आए थे। एक सब्जेक्ट था ऑप्शनल, संस्कृत। तो मैं संस्कृत के क्लास में मैं गया, तो उसको पता था कि मैं कुछ, क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन का एक वो छात्रावास था, उससे आता, तो उसको पता था कि ये SC का है। तो मेरे को तो ऐसे घूर के देखा था, संस्कृत में पढ़ के क्या करोगे तुम, पंडित बनोगे? तो ही यूज्ड टू टॉर्चर ऑलमोस्ट एवरी डे, क्यों आए तुम संस्कृत पढ़ने के लिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर कि मीडिया कास्ट को कैसे कवर करता है? आपको क्या कोई भी ऐसा मीडिया हाउस है आपकी नज़र में जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा है? बट इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं आती है, नहीं आती। बहुत सारे सुसाइड केसेस होते हैं, IIT बॉम्बे और दिल्ली में तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चीज़ें नहीं आती। नहीं कोई अवेयरनेस का कोई कैंपेन है, ऐसा मीडिया तो बिल्कुल टोटली नॉट डिसइंटरेस्टेड रादर। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट, गोदी मीडिया पर्टिकुलरली। मेरा कहना है कि ये जो रोग है सामाजिक, इस रोग पे पर्दा डालने से ख़त्म नहीं होगा, ये ओपन डिस्कस करने से ही ख़त्म होगा। IITs को मैंने सारे चिट्ठियाँ लिखी है। किस टाइप की चिट्ठियाँ? मैंने चिट्ठी ऐसी लिखी थी कि भाई आपके IITs में SC/ST सेल किया, बनाया कि नहीं आपने, वो है तो कौन लोग है। उसके बाद में वहाँ पे लाइजन ऑफिसर आपने रखा है कि नहीं है। फिर आपके यहाँ कास्ट सेंसिटिव प्रोग्राम होते हैं कि नहीं। तो मैंने 2022 में भी लिखी, 23 में भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई IIT जवाब देने की जरूरत नहीं समझता है कि ये कौन लोग हैं हमको पूछने वाले, तो क्यों इनको जवाब दें? नहीं देते, क्या कर लेंगे? उनको ये है, मान लो चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, भाई एक PMO से चिट्ठी जब जाती है किसी डिपार्टमेंट को तो अगले 2 घंटे में जवाब जाता है ना, PMO से चिट्ठी जाने के बाद। लेकिन हमारी चिट्ठी को उनको कूड़े में डाल देते हैं, उनको मालूम है ये क्या कर लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये चीज़ होती है।